Hello everybody, welcome back. Okay, in the exercise 2.6, we had solved only 4 questions up to now. Okay, and there is a fifth question that I have given to you to solve by yourself. Okay, and after that we will see the question number 6. Okay, but still, if you are getting any difficulties to solve that fifth sum, okay, fifth question, you can come back to me anytime. You can ask me any queries or any problem that you are facing to solve that sum. Okay, so now we are going to start our sixth. We are going to understand our sixth question, and in this sixth question, we are going to have a word problem. We have already solved many word problems, so you are very familiar with the word problems. What generally happens in word problem? Okay, we we generally guess values, and then we frame the equation, and then we find out the value of that variable, and this is how we can solve the word problem. Okay, just a minute. Okay, so this word problem is, there is a two character over here. There is the ages of Hari and Harry. There is a two character have been given to us. One is Hari and second is Harry. So the ages यानी उसकी उम्र, the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. Hari और Harry इन दोनों की एज है, उनका जो रेशियो है वो कितना है 5:7. Okay, so if you remember, based upon the ratio, we can guess the age. Okay, how? If you can remember, we had a similar type of word problem before, at where we have been given might be the ratio of her daughter and the daughter and her grandfather. Okay, at that time we have guessed the age of both of them according to the ratio. Okay, so same thing we are going to do here. We will make our assumption based upon the ratio. Okay, so here ratio is 5:7. So this 5 is directly proportional to Hari, and this 7 is proportional to Harry. Okay, so we will guess the age of Hari is 5x and age of Harry is 7x. हम हरी की एज 5x गेस करेंगे और हैरी की जो एज है वो 7x गेस करेंगे. बट दिस एज आर प्रेजेंट एज यानी कि अभी हाल की एज है. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज 4 years from now. 4 years from now यानी कि अभी से. 4 years 4 सालों के बाद. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. 4 सालों के बाद उनके एज का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? विल बी यानी हो जाएगा कितना? 3:4 आफ्टर 4 years. If this sentence were like कि if 4 years from now the ratio of their age was 3:4, in the place of will be, if there is a was at that time, अगर was होता तो हमें ये समझना है कि ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि आज से 4 साल पहले उनकी एज 4 साल पहले, लेकिन यहाँ पर was नहीं है. So we don't need to think so much about that. We have been just told that from years from now, आज से 4 सालों के बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा. तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो अभी उनकी प्रेजेंट एज यानी हाल की अभी की एज फाइंड आउट करिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट first of all I am going to guess the present age of Hari and Harry. Okay, so suppose present age of Hari is 5x years. Don't forget to write years. Okay, because age always consider in a years. Okay, if there is a speed, we will write kilometer per hour or meter per second or something like that. Okay, and
present age and present age of present age. Here I forget to write of. We need to write suppose present age of Hari and present age of Harry is 7x is 7x years. Okay. फर्स्ट थिंग वी हैव डन कि हमने क्या किया, पहला जो सेंटेंस था उसके बेस पर हमने गेस एज्यूम कर लिया. नाउ सेकंड सेंटेंस इज 4 इयर्स फ्रॉम नाउ. आज से 4 सालों के बाद देयर एजेस विल बी 3 to 4. तो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट देयर एज. अभी हरी की एज कितनी है 5x ईयर और अभी हैरी की एज कितनी है 7x ईयर. अभी किसी की एज ऐसे होती नहीं x में, बट वी हैव जस्ट एज्यूम कि सपोज हरी की एज 5x है और हैरी की एज 7x है. तो 4 साल के बाद हरी की एज कितनी हो जाएगी 5x + 4 और 4 सालों के बाद हरी की एज बढ़ेगी तो हैरी की भी एज बढ़ेगी. ओके, हर 4 साल के बाद सबकी एज बढ़ती है, राइट. जितने भी लोग प्रेजेंट में मेरे साथ है सबके 4 साल के बाद 4 साल बढ़ जाएगी. ओके, तो सपोज हरी की एज अभी 5x है तो 4 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 5x + 4 और हैरी की एज अभी 7x है तो आफ्टर 4 ईयर हैरी विल बी 7x + 4. ओके, आफ्टर 4 ईयर हरी's एज will be कितनी हो जाएगी 5x. अभी उसकी 5x है तो उसमें 4 ऐड हो जाएंगे 4x 5x + 4 years. ओके, आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर 4 इयर्स तो 5x + 4 कर दिया. सपोज आफ्टर 7 ईयर होता 7 सालों के बाद तो मैं क्या कर देता 5x + 7. अगर बिफोर 4 ईयर होता यानी कि 4 साल पहले होता तो मैं क्या करता 5x - 4. इफ आई हैड अ before 8 year at that time I will subtract 5x - 8 year. अगर 4 साल पहले की बात है तो 4 साल सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 साल बाद की होने वाली बात है फ्यूचर की तो उसको ऐड कर दो. ओके, सिंपल. सो आफ्टर 4 ईयर अगेन आफ्टर 4 ईयर I have guessed the age of Hari. Same thing after 4 years now I will guess the age of Harry. Harry's age will be कितनी हो जाएगी 7x + 4 years. 7x + 4 years. ओके, ये भी हमने एज्यूम कर लिया. ओके, तो 5 सालों के बाद हरी की एज कितनी है 5x + 4 और 5 नहीं 4 सालों के बाद 4 सालों के बाद हरी की एज कितनी है 5x + 4 और 4 सालों के बाद हैरी की एज कितनी होगी 7x + 4. लेकिन हमें क्या कहा गया है वी हैव बीन टोल्ड कि 4 सालों के बाद उनकी एज का रेशियो कितना होगा 3 to 4. रेशियो मींस इन दोनों का डिवीजन. रेशियो का क्या मतलब होता है, एक और अगर हम मतलब निकाले तो इन दोनों का होता है डिवीजन. तो इन दोनों का डिवीजन कितना हो जाएगा 5x + 4 और 7x + 4. ये क्या है, व्हाट इज 5x + 4? दिस 5x + 4 इज हरी's एज आफ्टर 4 ईयर. ये 4 सालों के बाद हरी की होने वाली एज है और ये 4 सालों के बाद हैरी की होने वाली एज है. तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा 3 to 4. ऐसा हमें कहा गया है 3 to 4. ओके, so if you will try to recall a little bit then you will able to notice we have made a similar type of question that we have solved in exercise 2.6 in a very first, second, third, fourth and fifth question. उस तरह का हमारा अभी इक्वेशन फ्रेम हो गया है. तो उसमें हम क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, राइट. हम देन वी ट्राई टू ब्रिंग ऑल द वेरिएबल टुगेदर एंड ऑल द नंबर टू द राइट साइड. इस तरह के हम तो सेम थिंग वी नीड टू परफॉर्म ओवर हियर. भाई हमें यहां पर करना, मैं क्या करूंगा अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा. 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ. सो दिस 4 विल कम टू दिस साइड 5x + 4
and these 3 7x plus 4 7x plus 4. okay, it's very easy. 4 का मल्टीप्लीकेशन 5x plus 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 7x plus 4. now I am going to remove the bracket, so this 4 will be multiplied with 5 as well as this 4. so 4 5s are 20x, 4 5s are 20x, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 3 7s are 21x, and 3 4s are 12. 3 4s are 12. okay, now this I will write this 20x as it is, and if I am going to move this 21x this side, so it will become minus 20x. so for me 20x, for me it will not become possible to subtract 20x from 20. तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना. अभी हर बार हम क्या करते थे कि इस 20x को इस तरफ लेकर आते थे, फिर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन कर सकते थे. लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20x को अगर ऐसे का रखूं, वैसे के वैसे रखूं, 21x को इस तरफ ले आओ, तो 20x माइनस एक्स 21x जो है वो माइनस बन जाएंगे, और फिर 20x में से 21x सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा. आपका आंसर माइनस में आएगा. आपका आंसर आएगा सही अगर आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा. तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना. मैं 16 को वैसा का वैसा रखता हूं. सबसे पहले मैंने साइन ऑफ इक्वलिटी कर दी, जो बीच में थी वही की साइन मैंने इक्वलिटी वैसे का वैसे कर दी. मैंने दिस 21x को वैसा का वैसा लिखा. दिस 21x जो वैसा का वैसा, जो वैल्यू को मैं वैसे की वैसे लिखता हूं, वैसे की वैसे मींस जो राइट साइड है और उसको राइट साइड ही रखता हूं, उसकी साइन चेंज नहीं होगी. ओके, सपोज दिस 21x से जो थे राइट साइड थे, तो मैंने साइन ऑफ इक्वलिटी के राइट साइड ही रखा. सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द साइन. ओके, this 21x right now it is in left side, and I am going to move this 20x into the right side. तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी और बन जाएगी minus 20x. okay, I hope it is simple to understand. I am going to write this 16 as it is. As it is means, when I say as it is means, I am going to keep this 16 into the left side only. जो अब पहले भी किस तरफ से, लेफ्ट साइड से. अभी मैं साइन ऑफ इक्वलिटी के कहाँ रखे, लेफ्ट साइड, तो मैंने उसकी साइन चेंज नहीं की. प्लस थे तो प्लस के प्लस ही रखे. बट आई एम गोइंग टू मूव दिस 12, जो भी राइट साइड है उसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं, तो वो कैसे बन जाएंगे 12 माइनस 12. इस तरह से हमने x को अलग कर दिया और नंबर को अलग कर दिया. I hope it's very easy. Now 16 minus 12 is 12. 16 minus 12 is 4, and 21x minus 20x is x. So we got the value of x is 4. x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4. हमने इक्वेशन सोल्व कर दिया. सो x की वैल्यू अभी यहाँ पर रख सकते हैं. प्रेजेंट एज ऑफ हरी जो कितनी है 5x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी वो कितनी है 7x. तो जहां पर भी x है उसकी जगह पर कितने लिखूंगा, 4 लिखूंगा. x की जगह पर 4 लिखूंगा तो 4 5 5 4 20 बन जाएंगे, और यहाँ पर मैं अगर 4 लूंगा तो 7 4 28 बन जाएंगे. लेट मी डू. आई एम नॉट श्योर हाउ मच स्पेस आई विल हैव. सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी, present age of हरी जो कितनी है 5x is equal to 5x years. ओके, जहां पर ये x है, उसकी जगह पर मैं कितने लिखूंगा 4. तो x की जगह पर मैंने कितने लिख दिए 4. ऐसे नहीं लिखना है, तो वो 54 बन जाएगी. गलती से भी ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि 5 और x के बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है. तो here we also maintain the relation as it is. So 5 4s are 20 years. 5 4s are 20 years. Okay. So I got the value of Hari. Similarly, you can also find out the value of Harry. Age of Harry. How? आप क्या करोगे? आप वैसा का वैसा लिखोगे. आपको ये खुद से करना है. I am not going to do for you. You will do this by yourself. Present age of Harry. Harry की जगह आप लिखोगे Harry. प्रेजेंट एज ऑफ हैरी
इज इक्वल टू 7x years, और x की जगह पर आप लिख दोगे 4, तो आपका आंसर आएगा 7 4 जा 28 years. Okay, so this is how you will go up to there. Okay, I hope it is understandable, this sum, but still if you don't, yes, one more thing I want to tell all of you through this video, that many of the children are coming to the school to clear their own query, on question, or difficulty, on whatever problem they are facing in any of the examples, 6th grade, 7th grade, 8th grade, 9th grade. So if you want to come to school, तो आप भी स्कूल आ सकते हो. Before calling me, sorry, before you come to school you need to call me. Before you come to school you need to call me कि whether I am available to school or not. आपको एक कॉल कर देना है कि सर हम स्कूल आ रहे हैं, आप स्कूल पर हो कि नहीं. Generally on Monday and on Wednesday I am in a school, so you can come to Monday or on Wednesday. But if you want to come on any other day you can also come, but you just need to call me before you come. आपको एक कॉल करना है और उसके बाद आप कभी भी आ सकते हो. अब आपको कुछ भी सीखना हो इसके रिलेटेड, सेकंड चैप्टर में अगर आपको कुछ कह रही हो, फर्स्ट चैप्टर में कुछ सीखना चाहते हो, या कुछ भी या होमवर्क चेक करवाने भी अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो. ओके, और आपको और भी कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, तो आप कभी भी स्कूल आ सकते हो. ओके, कई बच्चे, कई चिल्ड्रन, कई भी स्टूडेंट हैं जो आए हुए भी हैं. ओके, तो आप भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कभी भी आओ. अगर आपको कोई और भी चैप्टर सीखना है, इफ यू वांट टू learn about any other chapter like 3rd chapter, 4th chapter, you can also come to. Okay, because in a few days or after Diwali we will be organizing a exam for you. Okay, so it's very important for all of us, that we do not have any problem or any difficulties in our first as well as in the second chapter. Okay, thank you.